everyone. Today we will discuss quantum numbers of class 11th chapter atomic structure. हम क्यों quantum numbers पढ़ रहे हैं? Because according to Bohr model of an atom, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट हमें उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है. We cannot find out the proper location of the electron, but we can find the probability, maximum probability of finding the electron, where an electron can be present. So we will discuss quantum numbers. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin magnetic quantum number. Principal quantum number is denoted by n. Azimuthal quantum number is denoted by L. Magnetic quantum number is denoted by ML. Spin magnetic quantum number is denoted by MS. So now we will discuss principal quantum number in detail. Principal quantum number which is denoted by N. वो determine क्या करता है? It determines a main energy shell. It determines main energy shell or energy level in which electron is present. Shell. This word you have to remember. So, principal quantum number is denoted by n. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है from 1 to infinity. अगर n की वैल्यू 1 होगी उसको k shell भी बोलते हैं. अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको l भी बोलते हैं. n की वैल्यू 3 m, n की वैल्यू 4 then n so on. So next क्या है हमारे पास? अगर n की वैल्यू 1 है उसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट शेल in which an electron is present. If n is equal to 2 then you can say it is a second shell in which an electron is present. अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, it means if I will draw the diagram, this is a nucleus and this is a first shell in which electron is revolving. It means this shell is nearest to the nucleus. Its value is n is equal to 1, known as first shell. अगर क्या है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हो then उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा फ्रॉम न्यूक्लियस से. सो n और क्या बताता है तुम्हें एनर्जी लेवल के अलावा? इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है? दिस ऑल्सो डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number which is denoted by L. Azimuthal quantum number हमें क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? It determines the subshell of electron. Remember this thing, L will give us subshell. जो azimuthal quantum number है हम उसको L के साथ डिनोट करते हैं. जो L की वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? L 0 to n-1. इसका मतलब क्या है? देखो अगर n is equal to 1 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? That is 0 only. Clear? अगर n की वैल्यू 2 है हमारे पास तो L की वैल्यू क्या आएगी? 0 to n-1 क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी. Clear? अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा? L की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी. सॉरी 2. क्लियर? अब देखो क्या है, n की वैल्यू अगर 1, l की वैल्यू 0. अगर n की वैल्यू 2 then 0 1 0 1 2 रिस्पेक्टिवली. अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर l की वैल्यू 0 हो तो सबशेल कौन सा होगा? दैट इज s सबशेल. क्लियर? अगर l की वैल्यू 1 then it is p सबशेल. अगर L की वैल्यू 2 होगी then it is D subshell. Means electron is present in D subshell. If L is equal to 3 then it is present in F subshell and so on. So now next S. S क्या है? S means sharp, P means principal, D means diffuse, F means fundamental. जो ये सबशेल के वर्ड्स है ये कहाँ से आए हैं? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल से. क्लियर?
This thing you have to remember. L is equal to 0, S. L is equal to 1, P. L is equal to 2, then D. L is equal to 3, then F. Clear? This thing also one formula is there. Number of subshell in the principal shell is equal to the value of M. कैसे? देखो क्या है, अगर मेरे पास M is equal to 1 है, then L कितना होगा? 0. सो अब हम डेजिग्नेट करेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल होगा और कौन सा सबशेल होगा. इसको कैसे लिखेंगे? 1s. कैसे लिखेंगे? 1s. n क्या है? 1. l इज इक्वल टू 0. l इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है? s. नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2. देन l की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 या क्या होगी? 1. क्लियर? अगर क्या है n 2 है तो कौन सा होगा? 2. l इज इक्वल टू 0 के लिए s, 2s. l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है? p. सो क्या आ जाएगा? 2p. लाइक दिस यू कैन राइट फॉर n इज इक्वल टू 3. अगर n इज इक्वल टू 3 होगा देन l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2. क्लियर? सो 3s, 3p and 3d. So these are the name of the subshells which are present in the respective shell. So देखो, number of subshell in the principal shell, कितने number of subshell हुए? अगर n is equal to 1 है तो इसमें कितने सबशेल प्रेजेंट है? सिर्फ एक सबशेल है. अगर n is equal to 2 है तो इसमें टोटल कितने सबशेल हैं? 2 सबशेल है. क्लियर? अगर n is equal to 3 है तो इसमें कितने सबशेल हैं? टोटल 3 सबशेल है. सो azimuthal quantum number which is denoted by L, ये हमें क्या बता रहा है? It tells us about the subshells. One thing more, azimuthal quantum number को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताते हैं. क्या बताते हैं? एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1, वेयर l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. अगर तुम्हें L की वैल्यू पता है then we can find out the angular momentum number easily. Next we will discuss magnetic quantum number which is denoted by ml. Magnetic quantum number हमें क्या बताते हैं? They determine number of orbitals in a subshell. कि कितने orbitals होंगे सबशेल में, वो क्या बताएगा? ml. So क्वेश्चन ये है कि orbitals क्या होते हैं? ऑर्बिटल एक वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल. और एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ विच इज डिनोटेड बाय ml. सो ml का फॉर्मूला क्या होता है? ml इज इक्वल टू माइनस l टू 0 2 प्लस l. क्लियर? अगर क्या है ml की l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू 0. अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? ml इज इक्वल टू माइनस 1 हो सकती है, 0 और प्लस 1. इफ l इज इक्वल टू 2, अगर l 2 हो तो क्या होगा? ml माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2. क्लियर? These are the values of ml. अब देखो ml के जितनी ml की वैल्यूज हैं, अब ml की वैल्यू सिर्फ एक है, इट मींस इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अगर ml की वैल्यू 0 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके पास? सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा. अगर ml की वैल्यू माइनस 1 0 प्लस 1 इट मींस 3 है तो उसके पास क्या होंगे? 3 ऑर्बिटल्स. ml की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3 4 5, उसमें कितने ऑर्बिटल्स है उसके पास? 5. क्लियर? अब देखो क्या है इसमें ml माइनस 1 0 प्लस 1 3 ऑर्बिटल्स है. मींस अब तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे. l इज इक्वल टू 1, कौन सा सबशेल होगा? s. क्लियर? s सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1. अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे.
अगर L की वैल्यू 2 होगी, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? D सब शेल के लिए। D सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। Ml की वैल्यू -1 0 +1, इसको हम कैसे लिखते हैं? Px Py Pz, क्योंकि हर एक एक्सिस में क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही इसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं dxy dyz dz² dx² -y² एंड 1 इज लेफ्ट dxz, कोई भी हो सकती है इसमें। क्लियर? अब एक और फॉर्मूला है जिससे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो ml. ml is also equal to 2l plus 1, where l represents number of orbitals. Sorry, ml represents number of orbitals. Next topic is spin quantum number, which is denoted by ms. It determines the spin orientation of electron. अब तक हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। क्लियर? वही हमें क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय ms, के जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। अब उसकी सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज करेगा रोटेट, या फिर क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब देखो क्या है क्लॉकवाइज, अगर वो इसमें क्या था कि उसने क्या है, दो वैल्यूज दे दी थी, +½ और -½ क्लियर? ये फिक्स नहीं है कि अगर क्लॉकवाइज है तो +½ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ होगा। क्लियर? सो अगर वो क्लॉकवाइज है तो +½ ले, अब दूसरा क्या होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी उसकी स्पिन? -½ जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम या तो ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम? स्पिन अप, और इसको क्या बोलेंगे हम? स्पिन डाउन। So we have done 4 quantum numbers. The first one is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, and fourth is spin magnetic quantum number. So now I will give you one overall, ठीक है, quick review of all the quantum numbers. So n हमें क्या बताता है? शेल of the electron. L is azimuthal quantum number, जो हमें बताएगा सब शेल के बारे में। नेक्स्ट इज ml क्या बताएगा हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ms क्या बताएगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। So now we will discuss all the quantum numbers. देखो क्या है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? ml की वैल्यू 0। सबशेल कौन सा होगा? सबशेल कौन सा होगा? 1s। नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे? देखो एक है। क्लियर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो क्या होगा? l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1। ml की वैल्यू 0 -1 0 +1। सबशेल कौन सा होगा? ये 2 0 के लिए क्या होगा? l = 0 s 2s। इसके लिए क्या होगा? 2p। क्लियर? पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अगर क्या होगा? n की वैल्यू 3 होगी तो l की 0 1 2। ml की वैल्यू 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट इज ml की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L। ठीक है? l कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 0 to n -1। क्लियर? अब देखो इसमें कौन सा सबशेल होगा? 3s। 3 और 1 के लिए 3p एंड 3d। अब हमें काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे। इसमें एक है, इसमें नंबर ऑफ सबशेल कितने हुए? 2। इसमें नंबर ऑफ सबशेल कितने हुए? 3। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स।
देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2s, क्लियर। s के लिए कितने होंगे ऑर्बिटल, 1। 2p के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखो 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसके लिए 3s के लिए 1 ऑर्बिटल। इसके लिए काउंट करो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 3। इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 5। सो टोटल 1s में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1। 2s और 2p में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4। 3s 3p 3d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। अब एक बात और है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 ऑर्बिटल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।